Hello everyone, welcome to my channel Political and Social Issues. Today we will talk about objective type questions with answers of features of the Indian Constitution. This is the part 2. पार्ट 1 में ऑलरेडी हमने 15 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं. अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, पहले वो देख लीजिए. और ये पार्ट 2 है, इसमें हम नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. सो माई सेल्फ प्रिया मिश्रा. अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें. इससे आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे. लेट्स स्टार्ट. First question. Fundamental rights can also be suspended during the operation of a national emergency except the rights guaranteed by the dash. Options are Article 19 and 21, Article 20 and 21, Article 20 and 25, Article 29 and 30. And the right answer is Article 20 and 21. Article 20 talks about the protection in respect of conviction for offences, and Article 21 talks about the right to life and personal liberty. Okay, next, directive principles of state policy are enumerated in part dash of the Constitution. Options are part 2, 4, 3, 6, and the right answer is part 4. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का मीनिंग क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स are the principles or the guidelines that direct the state when it makes policies for its people. For example, equal justice and free legal aid, organization of village panchayats, or promotion of cooperative societies, etc. Next, directive principles of state policy are dash in nature. Options are just non-justiciable or justiciable, and the right answer is non-justiciable. अगर गवर्नमेंट ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स या जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो नहीं करते हैं सो उसके अगेंस्ट में हम कोर्ट में नहीं जा सकते. सो इट इज़ नॉन जस्टिशिएबल. ओके, नेक्स्ट, fundamental duties were added by the 42nd Constitutional Amendment Act of dash. Options are 1977, 1978, 1976, 1979, and the right answer is 1976. जब 1976 में फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड हुआ था तो उस टाइम पे सिर्फ 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड हुए थे. ओके, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज कब ऐड हुआ? इन 2002 थ्रू 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. ओके, नाउ द पार्ट dash of the Constitution specifies the 11 fundamental duties. Options are part 6A, first A, third A, fourth A, and the right answer is part 4A. 6. Fundamental duties are dash in nature. Options are non-justiciable, justiciable. So the right answer is non-justiciable. फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है? नॉन-जस्टिशिएबल है. अगर कोई भी सिटीजन फंडामेंटल ड्यूटी को परफॉर्म नहीं करता है तो उसके अगेंस्ट में हम कोर्ट में नहीं जा सकते. सो इट इज़ नॉन-जस्टिशिएबल इन नेचर. नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टैंड्स फॉर अ डैश state as it does not uphold any particular religion as the official religion of the Indian state. So the options are democratic, secular, socialist, republic, and the right answer is secular. Okay, next, the term secular was added to the preamble of the Indian Constitution by the 42nd Constitutional Amendment Act of dash 1950, 1978, 1976, 1999, and the right answer is 1976. So 1976 में जो सेक्युलर वर्ड था वो प्रियम्बल में ऐड किया गया. कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू. ओके, नेक्स्ट, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्बडीज डैश कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म. ऑप्शंस आर पॉजिटिव, नेगेटिव, एंड द राइट आंसर इज पॉजिटिव. अभी पॉजिटिव क्यों बोला जाता है? बिकॉज इन इंडिया इट इज गिविंग इक्वल रेस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन्स और प्रोटेक्टिंग ऑल रिलीजन्स इक्वली. ओके, नेक्स्ट, देयर आर डैश लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया. Options are 1, 2, 3, 4, and the right answer is 3 levels of government, like national government, central government,
national government, state government and local level government. Okay, so ये 3 levels of government है, national, state and local. Next, the Indian Constitution adopts universal adult franchise as a basis of elections to the dash. Lok Sabha and the State Legislative Council, Rajya Sabha and the State Legislative Assemblies, Rajya Sabha and the State Legislative Council, Lok Sabha and the State Legislative Assemblies. So the right answer is Lok Sabha and the State Legislative Assemblies. अभी लोक सभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में डायरेक्ट इलेक्शन होता है और जिनकी भी एज 18 ईयर्स कंप्लीट हो गई हो वो वोट के लिए एलिजिबल होते हैं, वोट करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं. The voting age was reduced to 18 years from 21 years in dash by the 61st Constitutional Amendment Act of 1988. Options are 1989, 1985, 1980, 1976 and the right answer is 1989. So जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम पर जो वोटिंग एज था वो 21 ईयर्स था, लेकिन उसको 1989 में रिड्यूस कर दिया गया और 18 ईयर्स कर दिया गया. और जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना था तो उसी टाइम से चाहे कोई रिच है, पुअर है, किसी का कोई अलग अलग कास्ट के हैं या उनका रिलीजन अलग है, कोई भी हो, जिसकी भी एज 18 ईयर्स कंप्लीट हो गई है तो वो वोट करने के लिए एलिजिबल हो जाता है, चाहे जो भी कास्ट या कम्युनिटी का होगा वो. ओके, सब लोग वोट करने के लिए एलिजिबल होते हैं जब उनकी एज 18 ईयर्स कंप्लीट हो जाती है. ओके, नेक्स्ट, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर ओनली अ डैश सिटीजनशिप, दैट इज इंडियन सिटीजनशिप. सो ऑप्शंस आर ड्यूअल, मल्टीपल, सिंगल, नन ऑफ द अबव. राइट आंसर इज सिंगल. सो सिंगल सिटीजनशिप इंडिया में है. अगर हम यूएसए की बात करेंगे तो वहाँ पे ड्यूअल सिटीजनशिप है. ओके, next, the political part of the constitution have been largely drawn from the dash. Options are Canada's constitution, France and British constitution, American and Irish constitution, and the right answer is British constitution. So political part of the constitution क्या है, like cabinet government और relations between the executive and legislature, तो ये political part of the constitution है. इसको हमने कहाँ से डिराइव किया है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज द डैश 1978 हैज रिप्लेस्ड द ओरिजिनल टर्म इंटरनल डिस्टर्बेंस बाय द न्यू टर्म आर्म्ड रिबेलियन. ऑप्शंस आर 42nd अमेंडमेंट एक्ट, 44th अमेंडमेंट एक्ट, 49th अमेंडमेंट एक्ट, 39th अमेंडमेंट एक्ट. एंड द राइट आंसर इज 44th अमेंडमेंट एक्ट. सो 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड को चेंज करके रिप्लेस करके आर्म्ड रिबेलियन कर दिया गया था. और ये जो इंटरनल डिस्टर्बेंस है इसके थ्रू 1975 में इसी बेसिस पर इंदिरा गांधी ने इंटरनल इमरजेंसी करके इमरजेंसी डिक्लेयर किया था. सो इस वर्ड को रिप्लेस करके आर्म्ड रिबेलियन कर दिया गया इन 1978 थ्रू 44th अमेंडमेंट एक्ट. ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच.